Hello students, good morning. I hope so you all done all the topics assigned to you till dates. Even if you are having any doubt, you all are welcome to ask me 24 into 7, that is at any time. My number is already with you. We all are in WhatsApp group. So whenever you have any doubt, you all are welcome. Today we are going to start our new chapter. The name of chapter is Idea of, yes, what's the chapter? Idea of efficiency. First of all, I would like to inform you that this chapter is a theoretical chapter. This chapter help us to learn how we can calculate efficiency of any program. Clear? Efficiency of a program means what? Efficiency of a program means, suppose we are making any program will take certain time to execute. If program runs fast, then we can say that our program is efficient. Means we can hello we can able to run a program using Python, but if any student make a program with small codes, maybe the same program can be executed or prepared with n number of steps. So it's not depend upon number of steps. If you make a program in such a way that it is too complex to understand, or if we are having n number of steps for a same program, as we already discussed that in Python, we can able to make a large program with a small codes in compared to other programming language, even though in compared to C++ language also. So if our program is small, having less number of codes, a program will run too fast, that is too efficient. So little bit introduction to this topic. Efficiency refers to the quality of an algorithm, that is code must perform the task in minimum execution time and resources. अगर हमारा प्रोग्राम मिनिमम रिसोर्स को यूज करते हुए मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट होता है तो हम उस प्रोग्राम को बोलेंगे हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट है. It is important to measure the efficiency of an algorithm before applying them on large scale, that is on bulk of data. अगर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम बहुत लेंदी होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है. उसको रन करने से पहले हम एक एल्गोरिथम बना के उसकी एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं, ना कि बहुत बड़े डाटा बनाने के बाद उसको चेक करें. Nowadays, most of the applications are online where prompt response is required. If efficiency of algorithm is not checked, then site will crash and organization may lose their customers business because of slow speed. आज की डेट में सबको सब चीज फास्ट चाहिए.
nobody have time. एंड जैसे कि हम भी यूज़ करते हैं, आप अपन सब यूज़ करते हैं, अगर हम से रेलवे की साइट पे या एयर इंडिया की साइट पे जाते हैं या फ्लाइट्स की साइट पे जाते हैं, कोई रिजर्वेशन करना चाहते हैं, तो अगर हम बहुत स्लो चलेगा हम खुद बोर हो जाते हैं, यार ये कैसा है. सो दैट इज एफिशिएंसी. नेक्स्ट, performance of algorithm depend upon internal factors and external factor. एक एल्गोरिदम वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट चैप्टर. एल्गोरिदम जो बनाते हैं या उस प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा उसका दो पॉइंट्स पे वो फैक्टर्स होंगे उसके जिसके ऊपर डिपेंड होगा. इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू रन एंड स्पेस रिक्वायर्ड टू रन. टाइम कितना टाइम में लेगा, स्पेस मीन्स मेमोरी कितनी लेगा. एक्सटर्नल फैक्टर साइज ऑफ इनपुट टू द एल्गोरिदम, हम कितना इनपुट कर रहे हैं उसमें. स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर ऑन विच इट इज रन एंड क्वालिटी ऑफ द कंपाइलर, हमारे कंपाइलर के ऊपर भी डिपेंड करेगा. व्हाट इज कंपाइलर? Compiler is already discussed in our class 11. Compiler means, yes, compiler means if we write a program, it will execute our program at a time. On the other hand, interpreter is also a translator program which help us to check our program. But difference is that interpreter run line by line, compiler run at a time. Since the external factors are controllable by some extent, yes, our major focus is to handle the internal factor. External factors को हम मैनेज कर सकते हैं, कम इनपुट दे सकते हैं, स्पीड ऑफ कंप्यूटर चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ कंपाइलर चेंज कर सकते हैं. लेकिन हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो टाइम कितना ले रहा है और हमारे पास स्पेस कितनी चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो हमारा मेन फोकस होगा इंटरनल फैक्टर्स पे. कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी. Computation involves problem to be solved and algorithm to be solved. Complexity involves study of how much resources like time and space is needed. Effectiveness means the algorithm carries out its intended function correctly. Efficiency means algorithm should be correct with best possible performance. Yes. Estimating complexity of algorithm. In previous slide, we already understood that two major factors responsible for efficiency of an algorithm: time taken and amount of space. देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ये समझना है हमारा उस जो प्रोग्राम बना रहा है वो कितना टाइम ले रहा है और उतनी कितनी स्पेस ले रहा है. ये मेजर फैक्टर है. अगर हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे तो हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट हो जाएगा. सॉरी. आउट ऑफ टू, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर. यस और नो? यस. Time complexity of a program is the number of elements instructions that this program execute. This number is computed with respect to the size and of input data. सबसे पहले हमें समझना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है. इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है बेटा, बिग ओ नोटेशन. व्हाट इज बिग ओ नोटेशन? द बिग ओ नोटेशन इज यूज्ड टू डिपिक्ट एन एल्गोरिथम ग्रोथ रेट. ये एक सिंबल है बिग ओ जिसको हम ग्रोथ रेट्स के लिए मेजरमेंट के लिए करेंगे. ग्रोथ रेट डिटरमाइन द एल्गोरिथम परफॉर्मेंस व्हेन इट्स इनपुट साइज ग्रो. आप सबको पता है हम प्रोग्राम में फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस में वैल्यू कुछ इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं. अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है, सपोज ये जो भी डाटा हम इनपुट कर रहे हैं वो ग्रो हो रहा है, तो उस केस में हमारे प्रोग्राम का परफॉर्मेंस कैसा होगा, मीन्स वो और स्लो हो जाएगा कि और फास्ट हो जाएगा. ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इनपुट करने से हमारा प्रोग्राम हैंग हो जाए या बहुत स्लो हो जाए.
Through BIGO, the upper bound of an algorithm performance is specified. That is, if an algorithm takes BIGO n square times, this means that algorithm will take at most n square steps for input n. यहाँ पे क्या बता रहा, इसको हम एक दो न्यूमेरिकल से भी करेंगे, क्योंकि ये बेटा ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको हम समझेंगे. BIGO means algorithm will take n steps for input n. अगर हम O of n लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ n, मतलब कि n स्टेप्स, n इनपुट के लिए वो n स्टेप्स ले रहा. अगर n स्क्वायर होगा मीन्स कोई वैल्यू इनपुट कर रहे हैं n, तो उसके लिए बिग O क्या हो रहा है, n स्क्वायर टाइम. कितने स्टेप्स ले रहा, n स्क्वायर. ऑर्डर ऑफ n 1 मीन्स एल्गोरिथम विल टेक वन स्टेप टू परफॉर्म एक्शन फॉर इनपुट n. क्लियर, ये सिंपल है. वो ऑर्डर ऑफ वन मिलेगा मीन्स उसमें क्या, सिर्फ एक स्टेप ले रहा. n मिलेगा मीन्स n स्टेप्स ले रहा. n स्क्वायर मिलेगा तो n स्क्वायर स्टेप्स ले रहा. क्लियर, इसको और न्यूमेरिकल से और क्लियर होगा, इसको बाद में देखेंगे. जैसे ये एग्जांपल है, ये क्या हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यस, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लियर है आपको, हाईएस्ट पावर 2 होती है. यस है. यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे बेटा हम ए बी सी तो कांस्टेंट है, जैसे आप समझते हैं. कांस्टेंट मीन्स हैविंग फिक्स वैल्यू. एक्स यहाँ पे वेरिएबल है. अगर हम यूज़र हमारा एक्स ए बी सी की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, लेकिन अगर हम ये पूरा कैलकुलेशन डिपेंड है एक्स स्क्वायर पे, क्योंकि वेरिएबल है. अगर हम वैल्यू ऑफ एक्स इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद हमारा प्रोग्राम एन नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूट करे, वो कितने होंगे इसके, हम उसकी एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं. तो हम क्या कर यूज करेंगे, बिगो, क्योंकि बिगो इज यूज टू डिपिक्ट एन एल्गोरिथम ग्रोथ रेट. द ग्रोथ रेट डिटरमाइन द एल्गोरिथम परफॉर्मेंस व्हेन इनपुट साइज ग्रो. मतलब कि इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा, बेटा यू हैव टू फाइंड द बिगो नोटेशन. तो बिगो कैसे निकालता है, उसका सिंपल सा शॉर्टकट हमें पहले समझो. शॉर्टकट ये है, इसमें जो भी उस इक्वेशन की पहले देखोगे, कांस्टेंट्स की वैल्यू, कांस्टेंट नहीं देखोगे, देखोगे आप वेरिएबल्स. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या, इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है 2. यस और नो, यस. तो इसकी बिग ओ नोटेशन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर. अब यहाँ पे एन क्यों बोला हमने, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है क्या. हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, हम जो इनपुट कर रहे हैं वो एन इनपुट कर रहे हैं सपोज. Then we can see that maximum impact on algorithm perform will be ax square. So only dominant term is included with big O notation. If algorithm has performance is big O की power n square, then larger n, for larger n the n square dominates. Means इसका अगर हम n square input करते हैं तो बिग ओ नोटेशन उसका क्या होगा, एन स्क्वायर. सिंपल सी बात है, आप इसकी हाईएस्ट पावर देखो एक्स स्क्वायर है, तो बिग ओ क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर. इसको भी बाद में समझेंगे बेटा. एक और एग्जांपल से देखते हैं. सपोज ये तो हो गया अभी तक जो हमने पढ़ा सिंपल टर्म. अगर सपोज हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें ऐसा है, हमने फॉर लूप से एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम ये फॉर लूप लिख रहे हैं, कोड है फॉर आई इन रेंज एंड ए इक्वल्स टू ए प्लस 2. बेटा यहाँ पे देख पा रहे हो एन, यहाँ पे वेरिएबल इनपुट क्या कर रहे हैं हम उसमें एन. लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 0 से लेके n-1, दैट इज n टाइम्स. यस, n टाइम्स होगा ना. हाँ, n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो क्या कर रहा है, n टाइम एग्जीक्यूट होने पे एक को कांस्टेंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है. यस और नो, यस. तो अगर हम इसको बिग ओ निकालेंगे तो बिग ओ क्या होगा, n टाइम तो लूप चल रहा है इनटू सी कांस्टेंट. सी यहाँ पे कोई भी, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल्स टू a प्लस 2 है, तो ये कांस्टेंट ले लेंगे, तो कांस्टेंट इनटू n. तो here n is a dominant term
मीन्स जो हम पास कर रहे हैं। सो एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि एन टाइम्स ही तो लूप चल रहा है। यस, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज ऐसे है, नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लूप देखो, लूप कैसे चल रहा है। आउटर मोस्ट लूप एन टाइम्स चल रहा है, इनर मोस्ट बी लूप एन टाइम्स चल रहा है, मीन्स एन इंटू एन, एन स्क्वायर टर्म्स चलेगा। पे चलने पे वो क्या कर रहा है कि कांस्टेंट टर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, एन ऑर्डर ऑफ एन क्या हो जाएगा, एन इंटू दैट इज टोटल टाइम टेकन, एन इंटू सी इक्वल्स टू सी एन स्क्वायर। तो जो टाइम टेकन है तो उसका एफिशिएंसी निकालनी है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, उसकी वेरिएबल की पावर देखेंगे हम, उससे हाईएस्ट पावर देखेंगे। अगर इसकी पावर और होती प्लस एन प्लस समथिंग होती तो हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी एफिशिएंसी होगी। एक और एग्जांपल से देखते हैं स्टूडेंट्स, समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये सब हम लोग पहले से कर चुके हैं, अपने प्रोग्राम्स बना चुके हैं। ये चैप्टर थियोरेटिकल चैप्टर है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, क्लियर हो करेंगे, होगा, हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट कांस्टेंट स्टेटमेंट है। यस, यहाँ पे फिर से फॉर लूप चल रहा है, कितने टाइम्स चल रहा है, एन टाइम्स। यस, एन टाइम्स चलने पे क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, एक कांस्टेंट स्टेट। कांस्टेंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स जैसा कोई टर्म नहीं है। अगर होगा तो आपको एक्स लिखा होगा। जैसे सेम वे जे टाइम्स चलने पे ये लूप जे टाइम्स जे के लिए चल रहा है एन टाइम्स, तो उसके अंदर एक और नेस्टेड है फॉर। तो इसको समझेंगे, देखिए ये कांस्टेंट टाइम है। यस, यहाँ पे एन टाइम्स लूप चलने पे कांस्टेंट सी टू हो रहा है, सी वन सी टू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। फिर एक और लूप है, एन टाइम्स चल रहा है, उसके एन टाइम्स चलने पे फिर से अंदर क्या चल रहा है, वो एन टाइम्स एक और लूप चल रहा है, उसके नेस्टेड फॉर हो गया, और यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो इसका टाइम टेकन क्या आएगा, पहले तो सी वन कॉन्स्टेंट प्लस एन चलने पे ये कॉन्स्टेंट सी टू कर ले रहा है, प्लस सी थ्री स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, एन स्क्वायर, क्योंकि नेस्टेड फॉर है, एन इंटू एन। तो इसका ऑर्डर ऑफ या एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगी, इस इक्वेशन में जो भी एन जो वेरिएबल है ना, टाइम टेकन जो है, जिसमें जो इनपुट किया है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है एन स्क्वायर। एन की पावर वन है, लेकिन हम हमेशा एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर को ही एज्यूम करते हैं, वो होती है उस प्रोग्राम की एफिशिएंसी। इफ एल्स में भी देख सकते हैं हम, अगर इफ एल्स से प्रोग्राम बनाए तो क्या होगा, आपके सामने प्रोग्राम है, आप लोग खुद सोचो, 2 मिनट का टाइम दे रहा है आपको। यस, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है आपको पता है, कैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है पता है आपको। आपको यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना है। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, बार बार बोल रहा है, कांस्टेंट टर्म्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि स्टेटमेंट को C1, दूसरे स्टेटमेंट को C2, क्योंकि कोई एन नहीं है। एन को देखना हमें, एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट, एन क्या इनपुट कर रहा है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो ठीक है। एल्स पार्ट पे आएगा, फॉर लूप फिर से एन टाइम्स चल रहा है, एन टाइम्स चलने पे स्टेटमेंट कांस्टेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, और फिर ये कांस्टेंट, मतलब ये लूप कैसे होगा, C1 प्लस C2 प्लस जो C3 और C4 चलने पे कितनी बार चलेगा, एन एन टाइम्स। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ओनली डोमिनेंट टर्म इज यूज्ड। तो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑर्डर ऑफ एन। अब देखो बेटा, algorithm complexity means that algorithm performance time has logarithmic factor. An algorithm order of log of n, if it's take constant time to cut the program size by fraction, after every iteration the number of possibility to repeat the loop is reduced by half, like in binary term. Yes, इसको और समझेंगे बेटा बाद में। अभी ये क्योंकि हम आज फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको और टफ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट टाइम, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट टाइम मीन्स या बेस्ट केस मीन्स
means an algorithm is performing its intended operation using minimum number of steps. हम बेस्ट बोलेंगे बहुत जल्दी जो एग्जीक्यूट हो जाए. वर्स्ट केस किसको बोलेंगे? वो एल्गोरिदम जो n नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में एग्जीक्यूट होगा. एवरेज किसको बोलेंगे? जो इन दोनों के बीच में हो जाएगा. एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपका वो आज का चैप्टर, आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा. ये टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स को, बहुत सारे प्रोग्राम्स की एफिशिएंसी निकालने की प्रैक्टिस करनी होगी. इसमें 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. हम इस टॉपिक को, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक भी है, बट आपकी इसमें इसका आईक्यू, आपका दिमाग चलना चाहिए, उस समय क्लिक होना चाहिए. अगर आपने n नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस की है तो आप पक्का इसको अच्छे से हर टाइम कर पाओगे. आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप सबको हम पहले बता चुके हैं कि आपको सारे नोट्स अभी तक जो बताए हैं उसको कॉपी में लिखना है. कॉपी जो आप बनाएंगे बड़ी कॉपी होनी चाहिए. जैसे प्रिंसिपल सर आपको सबको लास्ट ईयर भी बता चुके हैं, हम सब लोगों को बताया है कि कॉपी बड़ी होगी. फर्स्ट हाफ में होमवर्क, सेकेंड हाफ में क्लास वर्क होगा. होमवर्क क्या होता है बेटा? होमवर्क हमने पहले भी क्लासेस में बताया. होमवर्क मीन्स जिसमें आपको टीचर बताए ना बताए, हम स्पेशली सीएस की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, जिसमें आपको करना क्या, आपके जो भी प्रोग्राम्स हो, चैप्टर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, आपको उसको प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क में ही लिखना. टीचर बोले ना बोले, आपको एज ए होमवर्क उस प्रोग्राम को सिस्टम पे बनाना है, एग्जीक्यूट करना है और प्रोग्राम को लिखना है कॉपी में. एल्गोरिथम साथ में बनाने हैं, साथ में फ्लो चार्ट बनाना, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ से चलती रहे. क्लियर? तो इस टॉपिक को अपन और आगे देखते हैं. उससे पहले थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने आपसे डिस्कशन किया है. डिस्कशन और भी करना है बेटा आप लोगों से. लास्ट क्लास में उमेद ने रिस्पांस दिया, सुधांशु ने रिस्पांस दिया, बाकी स्टूडेंट्स ने भी आई थिंक सो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स को डाउनलोड करके देखा होगा, सुना होगा. हो सकता है आपके पास अभी नेट, या जिस समय क्लासेस हो रही हो आपका नेट नहीं हो पाते, तो भी आपके लिए, क्योंकि केवीबीएस और बांदीपुर टीम के द्वारा ये सारे प्रयास हो रहे हैं. हम सब आपके लिए डिवोटेड हैं. हम चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए, लेकिन जो कश्मीर में प्रॉब्लम है, जो नॉट ओनली कश्मीर, वी कैन से ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमारा अभी हम लोग उस स्टेज में नहीं आए कि हम एग्जैक्टली 4G और को अच्छे से रिसीव कर पाते हैं. तो जैसा भी है, हमें एनी हाउ हमें तो पढ़ना है, तो इसीलिए हमने यूट्यूब पे आपको लिंक भी दे रहे हैं. यूट्यूब पे इस प्रोग्राम की और बाकी प्रोग्राम्स की लिंक ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ. और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए होगी तो वो भी हमें बता सकते हो. मैं उसकी वीडियोस भी उसके टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेस्ट होगा मैं आपको बना के दे पाऊंगा. लेकिन बेटा ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना. आप सबको बहुत प्रैक्टिस चाहिए. ऐसा मत सोचिएगा कि अगले साल कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या चैनल प्रमोशन हो जाएगा, या ये सब हो जाएगा. हमें पता आप सब नहीं सोचे, लेकिन हम बेटा, एक चीज होती है पास फेल, एक चीज होती है, लेकिन ये जो नॉलेज है ना आपको आगे लेके जाएगी.
आपकी लाइफ में आपको कुछ, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आप अगर इन नॉलेज ले लेते हो तो वो नॉलेज आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। मार्क्स तो आपके मार्कशीट पे रहेंगे, वो भी ज़रूरी है, उसके साथ नॉलेज भी ज़रूरी है। मार्क्स कम आ जाए थोड़ा बहुत चल जाएगा बेटा, नॉलेज कम नहीं होनी चाहिए, है ना। ज़िंदगी में नॉलेज बहुत काम आएगी। तो बेटा आगे चलते हैं। सपोज ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या है, प्राइम नंबर का क्या है, एंटर इनपुट करवा रहे हैं वैल्यू ट्रू, इज प्राइम इज ट्रू, लॉजिकल स्टेटमेंट है, सिंपल। अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये कांस्टेंट स्टेटमेंट है। फॉर लूप चल रहा है 2 से लेके n टाइम्स, यस। इफ n मॉडुलस I equals to 0, is prime false, break. If prime number is print, prime number is prime, else print number is not prime. अब यहाँ पे बेटा एक फिर से यही वही क्वेश्चन अराइज होता, हमें इसका बिगो निकालना। बिगो मीन्स इसकी इस प्रोग्राम की एफिशिएंसी निकालना। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, सेम वे, हमें पूरे स्टेटमेंट में कांस्टेंट टर्म्स को देखना है और लूप कितनी बार चल रहा वो देखना है। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा कि सर ये तो लूप कितनी बार चलेगा, 2 से लेके n-1, तो एग्जैक्ट n टाइम्स तो नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे n क्यों लिखा। बेटा हम एज्यूम करते हैं n टाइम्स, इसलिए अगर हम ये भी लिखें कि ये स्टेटमेंट n-3 टाइम्स चलेगा या n-2 टाइम्स चलेगा, व्हाट आर मे द केस में भी, यहाँ पे 2 से लेके चल रहा है ना, मीन्स n-3 मान लो, n-3 होगा। तो यहाँ पे n-3 भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है, C1 प्लस C2 प्लस, अगर n-3 फॉर लूप चल रहा है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, फिर और स्टेटमेंट है, इतने सारे C1 C3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, ये सारे कांस्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो इवन दो n नंबर ऑफ टाइम्स जो n माइनस होगा, तो n की पावर, हाईएस्ट पावर तो क्या होगी, हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, यस यस। अगर इसके अंदर फॉर के अंदर एक और फॉर लूप चलता तो नेस्टेड फॉर होता, तो n इंटू n स्क्वायर टाइम्स होता। तो हमें यहाँ पे बिको में ये फर्क नहीं, n-2 है n-3 है, फर्क पड़ता है कि n की हाईएस्ट पावर क्या है, वही हमारे उस प्रोग्राम की एफिशिएंसी होगी। तो हमने एज्यूम किया n नंबर ऑफ टाइम, तो हमारा टाइम टेकन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 होल इंटू n प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7। अब हमें क्या करना है, इसके इस प्रोग्राम की एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, बिग ओ से, इसमें n की हाईएस्ट पावर क्या है, n, दैट इज 1, तो हमारा बिग ओ क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब आपको करना क्या है, करना ही है बुक खोलना, या बुक्स नहीं है तो मैंने व्हाट्सएप पे आप सबको ऑनलाइन बुक की लिंक भी शेयर की है, उस लिंक पे जाके बुक को खोलना, टॉपिक देखना, बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं चैप्टर में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको मुझे दिखाना है जब स्कूल खुलेगा, या आपको अगर कुछ डाउट है तो आप उस प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। I will try to solve that problem. I will discuss with you that problem. But try आपको करना है। और बेटा प्रैक्टिकल कॉपी के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा।
मे बी मार्केट खुला नहीं खुला, आई डोंट नो, मैं टाइम दे सकता हूँ। लेकिन जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो ना, उसको सिस्टम पे सेव करते रहना, ताकि बेटा हम उसको जब आपके मार्कशॉप खुल जाए तो मैं प्रैक्टिकल की लिस्ट दे दूंगा उसको, आपको प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम बनाया है उसका पहले फ्लो चार्ट, सॉरी फर्स्ट एल्गोरिदम, फिर फ्लो चार्ट, और फिर आपको प्रोग्राम लिखना है, उसको कंपाइल करके जो आउटपुट आएगा उसको आउटपुट भी लिखना है उसका, है ना। तो ऐसे आपको प्रैक्टिकल कॉपी भी प्रिपेयर करना है। आई होप सो आज का चैप्टर थ्योरेटिकल था लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, आपको क्लियर होगा। आप सब इसको कंप्लीट करेंगे और घर पे खुश रहेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।